Okay, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome everyone. Thank you for taking the time to join us today. My name is Aisha Mahmood and I am the ETP STP coordinator at Association of Muslim Professionals, abbreviated as AMP. Now, I will briefly introduce AMP. For that, I'll first share my screen. So, AMP is a non-profit organization with an on-ground presence in more than 140 active chapters across 26 states in 20 countries with almost 6,000 active members. AMP mainly works in three main domains: education, employment, and empowerment. AMP has many achievements to its credit under its main flagship projects and keeps adding new ones as the need arises. First one, School Development Program or SDP. SDP has sessions for all stakeholders in the education field. Second comes Employment Assistance Cell or EAC, which was launched in the year 2014. It conducts job fairs and job drives, and it is also conducting employability training program in colleges, that is ETPs, for which we all have gathered here today. And after that, the next comes STP under EAC itself. STP stands for Skill Training Company Ties and skill training program. Here we do candidate mobilization and skill development courses are introduced to the students by STP. So far, AMP has conducted more than 40 job fairs and around 250 job drives, bringing job seekers and corporates together and facilitating the placement for more than 15,000 needy candidates. It regularly runs career guidance seminars at more than 50 different locations in India, benefiting more than 10,000 students every month. AMP has supported more than 500 needy and deserving students by funding their higher education. It has helped more than 500 orphans with basic education. It has supported more than 200 poor and unemployed with its self employment schemes in the past 5 years. AMP is in partnership with around 50 government and non government organizations. It has acknowledged diligence and dedication by presenting over 100 Education Excellence Awards to deserving educationists. New digital initiatives by AMP. AMP has recently launched indiazakat.com, the India Mentors, and Empower Jobs. Indiazakat.com. It is India's first online zakat crowdfunding platform and was launched in April 2020 to liberate Indian Muslims from poverty and to set the individual on the path of self sustenance. Next one, the India Mentors or TIM. It is an online mentoring platform that is free and open to all. It envisions a fully educated and empowered student community where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness and guidance. Third, empowerjobs.com is an online portal started in October 2020, which endeavors to connect the right talent to the right opportunity. Talking about the reach of AMP, it is also present in the Middle East with chapters in Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, and UAE. And active volunteers are present in Singapore, Malaysia, South Africa, Oman, Bahrain, UK, US, and Canada. Lastly, I would like to emphasize that more than anything else, it is the rope of Islam that the members of AMP hold on to while treading the strenuous path of empowerment of the Indian Muslim community in particular and the society as a whole in general. That has been responsible for the
phenomenal growth that AMP has achieved in just over a decade. Now, without delay, I would like to introduce our speaker for today's webinar, Mr. Rahil Khan. Mr. Rahil Khan, a postgraduate in pharmacology, having over 13 years of experience in leading national and international universities as an academician. He gained additional expertise through working in Indian as well as international multinationals at different positions such as marketing executive, business development manager, pharmacist, and even served as a regional training manager in a healthcare company. He is an ardent believer in live your passion. Hence, he made training and facilitation as his profession, something he is passionate about. He is a certified train the trainer from EKA Academy, mentored by master trainer Brigadier Sushil Basin. He is currently working as academic head at Jamia College of Pharmacy, imparting hard and soft skills to the pupil. His other passion includes research, writing, and reading, which is living by publishing research articles in national and international journals. He firmly believes that training and teaching can surely bring the positive change if imparted properly. So now I would request Mr. Rahil Khan to start the session without delay. Thank you very much, Miss Aisha, for giving such an awesome introduction of mine. And without wasting your time, I would now start with the session. Okay, guys, so here we are back. और हमारा जो आज का सेशन होने वाला है, it is about personality development. Most of the people would think when the word comes personality, and on this particular part, personality development, बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है कि personality development होना या उसको पढ़ना या समझना सीखना, उसका मतलब ये होता है कि किसी एक बहुत ही बड़ी शख्सियत जो आपके दिमाग में होती है उस जैसा बन जाना. देखिए, किसी और जैसा बनना उसको हम कहते हैं कॉपी करना. एंड इफ यू आर गोइंग टू डू द कॉपी, आप कभी भी अपने आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको उभार नहीं पाओगे. तो यहाँ पे जो सबसे पहली मैं बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी इंसान को कॉपी करना मत शुरू करना लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे लोग, आई हैव बीन अ ट्रेनर सिंस ऑलमोस्ट ओवर अ डिकेड नाउ, और हमने सबसे पहले बहुत सारे लोगों में यही चीज को देखा है सॉरी, कि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो किसी को कॉपी करने की कोशिश शुरू कर देते हैं. सो प्लीज डू नॉट कॉपी एनीवन. सबसे पहली चीज, अपने आप को पहचानिए और अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनैलिटी को उभारने की कोशिश करिए. नाउ जैसे कि ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस फोटो में क्या नजर आ रहा है, कोई मुझे बता सकता है चैट में लिखते हुए? जहां पे आप देख रहे हैं एक शख्स जो कि दूसरों के सामने काफी छोटा महसूस कर रहा है अपने आप को. ओके, दिस इज व्हाट पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट. ओके, एंड पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम हियर, नॉट हियर. फिजिकल ट्राइट्स भी होते हैं पर्सनैलिटी के, लेकिन जो ज्यादातर हमारी पर्सनैलिटी उभर के आती है वो हमारी सोच से आती है. जैसे कि हमने बहुत सारी बातें सुनी होगी, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ फ्रेजेस सुनते हो, कुछ ना कुछ वर्ड्स सुनते हो, दैट शी हैज अ वंडरफुल पर्सनैलिटी. कभी आपने ये सुना होगा, ही हैज नो पर्सनैलिटी, कि उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है. ही हैज पर्सनैलिटी प्लस, कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उसके लिए एक एडवांटेज है. वी सीम टू हैव अ पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट, कि हमारे जो अंदर है वो पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट है. इट्स जस्ट हर पर्सनैलिटी, ये सिर्फ उसकी एक पर्सनैलिटी है, उसकी एक शख्सियत है. शी हैज हर मदर्स पर्सनैलिटी, तो उसकी जो शख्सियत है उसकी माँ की तरह है. ही हैज अ रियल पर्सनैलिटी, कि वो आदमी की शख्सियत बहुत ही रियल है. ऐसे बहुत सारे वर्ड हम सुनते हैं डेली लाइफ में, मगर हम ये नहीं तय कर पाते हैं कि पर्सनैलिटी एक्चुअली होती क्या है. तो आज हम उसी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे. यहाँ हमारे हिंदुस्तान के, हमारे इंडिया के दो बहुत बड़े लीडर्स हैं,
जिनका यहाँ पे मैंने फोटो रखा है, एक स्वामी विवेकानंद है, एक हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम है। दोनों की पर्सनैलिटी, और दुनिया भर में इनकी पर्सनैलिटी के लोग कायल हैं, इनकी पर्सनैलिटी को लोग चाहते हैं, इनकी पर्सनैलिटी को लोग मानते हैं। दो वर्ल्ड लीडर्स की यहाँ फोटोज हैं अगेन, जो कि पॉलिटिशियंस हैं, एक जॉर्ज बुश है, एक बैरक ओबामा है। इनमें से भी कई लोग एक ना एक किसी के समर्थन रहे हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि सचिन है, दिया मिर्जा है। इनके लोग बहुत ज़्यादा कायल होते हैं। नाउ आई वुड लाइक यू पीपल टू राइट द फेवरेट पर्सनैलिटी ऑफ यूअर्स इन द चैट बॉक्स। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जो फेवरेट पर्सनैलिटी हो, वो कोई भी हो सकती है, वो एक स्पोर्ट्समैन हो सकता है, वो एक पॉलिटिशियन हो सकता है, वो कोई एक कोई एक एक्टर हो सकता है, या कोई एक एजुकेशनिस्ट हो सकता है। जो भी हो, आप उनका प्लीज नाम चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। नाउ इसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शख्सियत आप जानते हैं, जिनको आपने देखा है। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों ने ऋतिक रोशन लिखा, किसी ने शाहरुख खान लिखा, किसी ने रोनाल्डो का नाम लिखा, किसी ने यू नो इट इज़ ऑल अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, कि इंसान दिखता कैसे है। जैसे अगर कोई लोग ऋतिक को या शाहरुख को पसंद करते हैं, तो इट ऑल अबाउट देयर पर्सनैलिटी, कि उनकी लुकिंग कैसी है। सो ये बहुत मैंने इसीलिए आपसे ये एक्टिविटी करवाई कि यहीं पे आपको समझ में आ जाए कि पर्सनैलिटी किन किन चीज़ों के ऊपर में बेसिस होती है, बेस्ड होती है। नंबर वन, फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन हम जो फिजिकल अपीयरेंस सोचते हैं दिमाग में, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के जो है तो सिक्स पैक एब्स हो। ओके, हर इंसान जो है तो मतलब बहुत ही मतलब फेयर हो, टॉल डार्क हैंडसम, जैसे हम बोलते हैं वैसे दिखे। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि हम अपीयरेंस में गुड हो। ओके, उसके बाद में आती है दूसरी चीज़, जिसको हम कहते हैं सोशलेबिलिटी। जैसे कि हम अगर देखें कि बहुत सारे लोग सोशल होते हैं, किसी ने पॉलिटिशियंस का नाम लिखा था, तो सोशलेबल जितना ज़्यादा होगा इंसान, उनकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी होती है। उसके बाद में होता है फिजिकल फिटनेस, जैसे जिसको हम कहते हैं, जैसे कि आपने किसी ने नाम लिखा बेयर ग्रिल्स का। इसके पास में क्या है, इसके पास में एक बहुत ही वैल्यूएबल एस्पेक्ट है बेयर ग्रिल्स के पास में, वो है इसका इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके पास में ये इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। ये बंदा किसी भी तरह की परिस्थितियों में जूझना, किसी भी तरह की परिस्थितियों में, किसी भी तरह के माहौल में अपने आप को ढाल लेना, ये जो एक क्षमता बताती है, ये होती है इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस। ये भी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं, उन्हीं के ऊपर में हम बात करते हैं कि वी लव दोस पर्सनैलिटीज बिकॉज ऑफ देयर व्हाट। नंबर वन इज अपीयरेंस, देयर एटीट्यूड। जो लोगों का, इंसान का एटीट्यूड होता है, वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से उठते बैठते हैं, वो होता है अपीयरेंस। होता है कि वो किस तरह से दिखते हैं, कपड़े किस तरह से पहनते हैं, बाल किस तरह से जमाते हैं। बिहेवियर, बिहेवियर कि वो लोगों से अपना बिहेवियर किस तरह से रखते हैं, कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, लोगों को किस तरह से मतलब हैंडल करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी इज समथिंग विच इज़ वेरी असेंशियल नाउ डेज इन एनी एवरी वन ऑफ अमंग्स अवरसेल्व्स, कि हम हमारे साथ के लोगों को किस तरह से लीड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लीडरशिप क्वालिटी जो है तो सिर्फ पॉलिटिशियन में होती है। लीडरशिप क्वालिटी इज ऑल्सो देयर इन अ पर्सन हु इज रनिंग अ कॉलेज। ओके, आपके जो टीचर्स हैं, उनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी होती है। आप अगर कोई टीम में हो, आप अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत है। चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे फुटबॉल खेल रहे हो, वहाँ लीडरशिप क्वालिटी देखने की ज़रूरत है। Even at your home, okay, your father is a very good leader because he is leading you people and your family. So वहाँ भी एक लीडरशिप क्वालिटी देखने में आती है। देन सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेल्फ एस्टीम होती है कि हमारी खुद की जो गरिमा है, हमारी खुद की जो इज्जत है, वो हमारी आंखों में और हम दूसरों की नज़रों में कैसे बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। देन कॉल्ड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात आती है कि हम कितने अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं लाइफ में। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, बहुत सारे लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है दैट अ पर्सन हु इज वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, एंड दोज पीपल हु थिंक दिस, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, कम्युनिकेशन इंग्लिश में करना अच्छी बात है। आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है, वो एक स्किल है। एक और लैंग्वेज आपको आ गई, जैसे आपको हिंदी आती होगी, यू पीपल आर फ्रॉम गुजरात, तो आपको गुजराती आती ही होगी। ओके, तो एक और लैंग्वेज सीख लेना, इट इज़ अ स्किल डेवलपमेंट। ओके, वो होनी चाहिए। और आजकल के दौर में, बिकॉज इंग्लिश जो है तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज जिसको हम कह रहे हैं आजकल,
समाज में, तो वो आना एक बहुत अच्छी बात है। बट कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप इंग्लिश में बहुत बात कर सको। कम्युनिकेशन का मतलब बहुत और भी होता है, जिसमें आपके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जो हम आगे जाके देखेंगे। Then comes time management, because those people who manages the time, they are wonderful people in terms of their personalities। कि आपको इतना वक्त कहा गया था, आप उतने बजे उस काम के लिए वहां पहुंच गए, आपने वो काम उतने वक्त में खत्म कर लिया। ओके, आपने जो है तो लोगों का टाइम भी बचा लिया, अपना भी टाइम बचा लिया अपने लिए। तो इसको कहते हैं वंडरफुल पर्सनैलिटी पर्सन। ओके, जो लोगों की पर्सनैलिटी पसंद की जाती है, वो लोग ज्यादातर लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ना ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज अनदर थिंग। फिजिक्स चुका हूँ। देन द थिंग कम्स टीम मैनेजरियल क्वालिटी, कि आप टीम को कितने अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। जो लोग जितनी अच्छी तरह से टीम को मैनेज कर सकते हैं, वो उतने ज्यादा जो है तो अच्छे पर्सनैलिटी उनकी उभर के आती है। मोटिवेशनल स्किल्स, कि लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों को जो है तो प्रोत्साहित करना, लोगों को मोटिवेट करना। जो लोग लोगों को मोटिवेट करना जानते हैं, तो उन लोगों की पर्सनैलिटी को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। देन कम्स इंटरपर्सनल स्किल्स, कि इंसान के अंदर में एक दूसरे से जुड़ने की, आपकी और समाज में दूसरे लोगों से जुड़ने की स्किल कितनी अच्छी है। देन कम्स बॉडी लैंग्वेज एंड आईक्यू। आईक्यू इज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ये यहाँ पर है, और इसके साथ में ईक्यू भी आता है, दैट इज इमोशनल क्वोशिएंट। एंड बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, कि क्योंकि हम लोग अभी वेबिनार में हैं, तो मैं यहाँ पर उतना आपको वो नहीं बताऊंगा, बट आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगा बाद में। बॉडी लैंग्वेज के लिए इंसान किस तरह से बात कर रहा है, उसके वर्ड्स का प्रभाव उसकी बॉडी लैंग्वेज से पड़ता है। ओके, तो बॉडी लैंग्वेज एक बहुत जरूरी चीज है। देन कम्स ट्राइड्स, परसेप्शन, रिलेशनशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, लैटरल थिंकिंग। ये जो सारी चीजें होती है, इन सारी चीजों को देखकर इंसान जो है तो पता लगाता है कि ये पर्सनैलिटी अच्छी है। ये सो इफ यू वांट टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, तो ये आपको डेवलपमेंट कैसे करना होगा। ओके, हम उसको कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। हम उसको कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। और ये जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है, ये किस तरह से होता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो, सेल्फ डेवलपमेंट इज टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस ओन लर्निंग एंड डेवलपमेंट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, रिफ्लेक्शन एंड टेकिंग एक्शन। नाउ व्हाट इज इट? देखिए, सेल्फ डेवलपमेंट होता है कि इंसान सबसे पहले अपने आप को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ले, कि मेरी पर्सनैलिटी इस तरह की है, मुझे कहीं ना कहीं चेंज होने की जरूरत है। द नंबर वन स्टेप टू डेवलप योर पर्सनैलिटी इज बाय चेंजिंग, ओके, एंड बाय एक्सेप्टिंग दैट समथिंग हैज टू बी चेंज्ड इन माई सेल्फ। जब तक हम ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरे अंदर में कुछ चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल हम बहुत सारी जगह मैं देखता हूँ, स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट मतलब पढ़ाई करना शुरू किए हैं कॉलेज में, या अभी वो जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आजकल एक बड़ा ही एटीट्यूड वाली चीज चल पड़ी है सोसाइटी में, कि माई एटीट्यूड इज माई एटीट्यूड, ओके, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये इस तरह की बातें जो है तो बहुत सारे लोग स्टेटस पे भी लगा के रखते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, उस तरह से उनका एटीट्यूड बनाते हैं कि मेरा जो भी एटीट्यूड है वो मैं उसी के साथ रहूंगा, किसी को चेंज होने की जरूरत नहीं है। ये जो चीज़ होती है, इसको हमको समझना चाहिए कि आपका जो एटीट्यूड है, ये जो आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें कहीं ना कहीं आपको चेंजेस लाने चाहिए। समाज में आपको अगर सरवाइव करना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो जो पॉजिटिव चेंजेस होते हैं वो लाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले उसमें होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल बने, कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि क्या चीज़ चेंज करनी है। देन फॉर वंस ओन लर्निंग एंड डेवलपमेंट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, सबसे पहले आपको असेस करना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपके अंदर में लैकिंग है। देन उसका रिफ्लेक्ट करना है, एंड देन यू आर गोइंग टू टेकिंग एक्शन, कि आपको उसके लिए एक्शन लेनी है, कि आपको पर्सनैलिटी का वो पार्ट को आपको चेक करना है, चेंज करना है। जैसे कि कई लोग होंगे कि उनका फिजिकल पोस्चर बराबर नहीं होता है, वो थोड़े से डल दिखते हैं, इस तरह से बैठ जाते हैं, इस तरह से चलते हैं। तो जो ये चीज़ होती है, इंसान को सबसे पहले वो चीज़ करेक्ट करने की ज़रूरत है। देन आपको लगता है अगर कि मेरा जो कम्युनिकेशन है, जैसे बहुत सारे लोग हिंदी भी, अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो आई गेस जहां तक जितने लोग होंगे यहाँ पर, वो शायद मेरी हिंदी को समझ पा रहे होंगे, बिकॉज आई हैव मेड अ न्यूट्रल एक्सेंट। जो मेरा एक्सेंट है, जो मेरा टोन है, जो मेरा लहजा है, वो मैंने न्यूट्रल कर रखा है। ओके, क्योंकि हमारे साथ में कई सारे जो है तो लहजे बने होते हैं, तो उसको करेक्ट करने की जरूरत होती है। ओके, जब हम वो चीज करेक्ट करते हैं, तो वहां पे हमारा एक बहुत सारा काम करेक्ट हो जाता है। ओके, देन व्हेन टू यूज इट, कि हम जो ये चेंजेस
हम लाते हैं, इसको किस तरह से हम यूज करें। कंटिन्यूअली अपडेटिंग स्किल्स एंड नॉलेज, हम जब तक अपनी स्किल्स को और नॉलेज को अपडेट करेंगे, हम हमारी पर्सनैलिटी को उतना ही ज्यादा ग्रूम कर पाएंगे, हम हमारी पर्सनैलिटी को उतनी ज्यादा उभार पाएंगे। टू डिटरमाइन फ्यूचर कैरियर डायरेक्शन, और मेन चीज ये है कि हम हमारे फ्यूचर कैरियर डायरेक्शन को समझ पाए कि मुझे किस तरफ जाना है, मुझे क्या एंटरप्रेन्योर बनना है, या मुझे कोई एक जॉब में कोई एक पोस्ट हासिल करनी है, या मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना है, यूपीएससी वगैरह क्रैक करना है। जो भी आपका जो एक मंशा होगी, हम उसको अगर डायरेक्शन बराबर रखें, हमारा गोल सेटिंग करें, तो हम हमारी पर्सनैलिटी को उस तरह से उभार पाएंगे। क्योंकि देखिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर मीन्स अ पर्सन हु रन्स हिज ओन बिजनेस एंड हु प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स एज वेल, कि कोई अपना बिजनेस वेंचर शुरू करता है खुद से, वो होता है एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक अलग टाइप की पर्सनैलिटी लगती है। आपको अगर एक स्पोर्ट्समैन बनना है, आपका अगर कैरियर गोल वो स्पोर्ट्समैन वाला है, तो उसके लिए एक अलग पर्सनैलिटी लगेगी। आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, आपको जो है तो डाइट उस तरह से मेंटेन करनी पड़ेगी, ओके, तो वो लगेगी। अगर आपको कोई एक जगह पे जॉब करना है, तो आपको उस टाइप की पर्सनैलिटी लगेगी। फाइन। सो ये जो पर्सनल आपका जो कैरियर होता है, उसका डायरेक्शन अगर आपको समझ में आएगा और आप अपनी नॉलेज और स्किल को उस हिसाब से अपग्रेड करोगे, ओके, सो देन यू कैन ग्रूम योर पर्सनैलिटी, रिमेंबर इट। नाउ हाउ टू यूज इट, आप किस तरह से इसको यूज करोगे। असेसिंग पर्सनल स्किल एंड इंटरेस्ट, पहले तो अपने स्किल्स और इंटरेस्ट को असेस करिए कि आपके पास में क्या क्या स्किल्स अवेलेबल है और आपके पास में आपका इंटरेस्ट क्या है, ओके, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, ओके। देन मेंटेनिंग अ लर्निंग लॉग और डायरी, एक डायरी या एक लर्निंग लॉग बनाइए जिसमें आप ये मेंटेन करें कि मैंने आज ये सीख लिया, मुझे ये सीखना था। अगर आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, सपोज आपको क्रिकेटर बनना है, तो आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए उसके लिए, उसको नोट डाउन करना शुरू करिए, ओके। अगर आपको एक फैकल्टी बनना है, आपको एक टीचर बनना है, तो उसके लिए क्या क्या ट्रायल्स लगते हैं वो लिखिए आप। सपोज आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो आप डेली लॉग लिखिए उसके लिए, क्या क्या आप सीख रहे हो, क्या क्या आप किस तरह से उसको एक्वायर कर रहे हो नॉलेज को। देन राइट अ पर्सनल विजन एंड मिशन नोट। विजन एंड मिशन नोट होता है, यही होता है जिसको हम कहते हैं गोल सेटिंग, ओके, कि आप अपना एक विजन और मिशन बनाइए। विजन होता है कि आपको आपका लक्ष्य है, आपको क्या बनना है, ओके, और मिशन होता है कि किस तरह से आप वो चीज बन जाओगे, ओके। जैसे आपका विजन होगा कि आपको यूपीएससी क्रैक करके आपको आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनना है, ओके, सपोज समवन कैन हैव दिस विजन। अब उसके लिए अगर वो पर्सन लॉग मेंटेन करना शुरू करे, उसका मिशन होगा कि सबसे पहले तो वो अपना ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लाए, ओके, जो भी ग्रेजुएशन, जैसे आप मेरे ख्याल में बीसीए के स्टूडेंट्स हो, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के, तो आप अपने हर ईयर में अच्छे ग्रेडिंग्स लाओ, प्लस उसकी कोचिंग अच्छे से करो, और जो यूपीएससी के एग्जाम्स हैं उनको क्वालिफाई करो, ये आपके मिशन होंगे, ओके। देन डेवलप पर्सनल प्लान टू आइडेंटिफाई लर्निंग नीड्स, ओके। एक पर्सनलाइज प्लान बनाइए अपने हिसाब से कि आपकी लर्निंग नीड्स क्या है, कौन कौन सी जगह है जो आपको सीखने की जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा लैंग्वेजेस, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अगर आपको वो सीखनी है तो आपको उसके लिए प्लानिंग करनी होगी कि मुझे एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। दूसरा, अगर आपको कम्युनिकेशन सीखना है कि हाउ टू कम्युनिकेट रिटन एज वेल एज वर्बल, के बोलना और लिखना, ये दोनों कम्युनिकेशन किस तरह से आप सीखोगे, ये पर्सनैलिटी के बहुत बड़े बेसिक्स है, बेस ये इन्हीं के ऊपर में पर्सनैलिटी एक इंसान की बनती है। देन कम्स पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट, ओके, कि आप लोगों के सामने अगर बैठे हैं, आपके सामने 5 लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं, 5000 लोग बैठे हैं, आप उनके सामने बात कर रहे हो, आप उनके सामने अपनी बात रख रहे हो, ओके। तो ये जो सारी चीजें हैं, वो एक पर्टिकुलर प्लान आपको बनाना और अपनी लर्निंग नीड्स को जानना कि आपको क्या क्या चीज सीखने की जरूरत है। देन फाइंड अ मेंटर टू सपोर्ट, ये बहुत बड़ा एक चीज होती है, दैट यू हैव टू फाइंड अ मेंटर टू सपोर्ट यू, एडवाइस एंड असिस्ट यू। नाउ ये जो मेंटर्स होते हैं, आप लोग बहुत लकी हो कि आपके कॉलेज के लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, एंड यू पीपल आर वेरी लकी दैट एएमपी इज नाउअडेज हियर, ओके। व्हेन वी वेयर यंगस्टर्स, जब हम हमारे कॉलेज में थे, तब इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो इस तरह से प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए। यू पीपल आर लकी इनफ कि यहाँ पे आज ऐसी एक तंजीम मौजूद है, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जो आप लोगों के लिए इस तरह से प्रोग्राम्स करवा रही है। तो आपको अपना एक मेंटर ढूंढना होगा, वो आपका कोई टीचर हो सकता है, या आपका कोई कोच हो सकता है, आपके कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं घर में, या आपका कोई एक आइडियल पर्सन हो सकता है जिनके जरिए आप सीखो और मतलब समझो उस चीजों को। देन रीड मैगजीन एंड जर्नल टू अपडेट योरसेल्फ, और बहुत सारे जो
मैगजीन्स होते हैं, बहुत सारे जो रिसाले होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें होती है, उससे नॉलेज भी गैदर करिए और वही चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को उभारने में मदद करेगी। 6 ways to make people like you. Now I'm giving you the tips how people can like you. Okay. Number 1 is become genuinely interested in other people. Genuinely interested. Okay. बहुत सारे लोग होते हैं, ये कम्युनिकेशन का भी रूल है कि कई बार होता है कि लोग आपसे बात तो कर रहे हैं लेकिन आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, आप उनको बोल रहे हो, वो अपनी बात आपको बोल देंगे, लेकिन जब आप अपनी बात उनके सामने में रखते हो तो वो इंटरेस्ट नहीं बताते हैं। ओके, ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं। सो यू शुड बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इनटू पीपल, कि जब वो आपसे बात कर रहे हैं, जब वो आपसे मुखातिब हो रहे हैं, तो आप उनसे बहुत अच्छी तरह से बात करिए। ओके, उनके साथ में इंटरेस्ट बताइए, उनके काम में, उनकी बातों में इंटरेस्ट जाहिर करिए, तो इससे आपको लोग पसंद करना शुरू करेंगे। देन स्माइल, ऑलवेज ट्राई टू स्माइल, बट नॉट एवरी टाइम। जब आप नॉर्मली किसी से बात कर रहे हो तो आप स्माइल करिए, मगर अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि यार मुझे कोरोना हो गया और आप तब भी अगर स्माइल कर रहे हो तो देन इट इज अ बैड थिंग। ओके, सो स्माइलिंग फेस बट हमको हमेशा रखना चाहिए। देन रिमेंबर दैट पर्सन स्वीटेस्ट नेम। ओके, लोगों के अच्छे नाम से उनको बुलाना सीखिए, क्योंकि क्या होता है, ए ए सफेद कपड़ा, ऐसा कोई अगर किसी को बुलाता है तो इट इज वेरी बैड। ओके, try to call people with their sweetest name. Okay, then be a good listener. This is the number one quality for communication as well. लोगों को सुनना सीखिए। ओके, पहले लोगों को सुनना सीखिए, जब सुनोगे तो उनको समझोगे। ओके, पहले सुनिए, फिर समझिए, और फिर उसके बाद में उनका जवाब दीजिए। एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। ओके, अपनी बात ज्यादा करने से बेटर है कि लोगों को उनकी बात पहले करने दीजिए, और उनको इंटरेस्टिंग आप लगोगे तो लोग विल पीपल विल लाइक योर पर्सनैलिटी। टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। ओके, अपने इंटरेस्ट जो आप बता रहे हो उसके साथ में लोगों के इंटरेस्ट की भी बात करिए। ओके, हो सकता है आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में हो, ओके, लेकिन सामने वाले का इंटरेस्ट जो है वो हो सकता है पॉलिटिक्स में हो या साइंस में हो, तो उनको उनके साथ में उस तरह की भी बात करिए, तो वो लोग आपके अंदर में ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा समझेंगे। मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट। ओके, एंड डू इट सिंसियरली। लोगों को इंपॉर्टेंस दीजिए, लोगों को जो है तो उनको जेन्युइनली इंपॉर्टेंस दीजिए, तो लोग आपको जो है तो इंपॉर्टेंस देना खुद ही शुरू करेंगे। देन विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। ओके, किस तरह से आप अपनी थिंकिंग के जरिए लोगों को जीत सकते हो, और यही बात होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कंसेप्ट ही यही है कि लोगों के सामने आपकी शख्सियत उभर के आए और लोग आपसे चाहने लगे, आपको लाइक करने लगे। द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। सबसे पहले तो लोगों से आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिए। ओके, आर्ग्यूमेंट जितनी ज्यादा आप अवॉइड करोगे, आपके लोग उतनी ही ज्यादा करीब आएगी, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उतनी ही ज्यादा उभर कर आएगी। देन गिव रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन्स ओपिनियन। ओके, दूसरे लोगों के जो ओपिनियन होते हैं, हो सकता है आप उनका जो ओपिनियन हो वो आपको पसंद ना हो, ओके, वो आपके हिसाब से ना हो, बट उसको भी हमको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ओके, सो एवरी पर्सन शुड गिव रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन्स ओपिनियन। उनकी जो राय है उसको रिस्पेक्ट दीजिए, आपको भले ही वो पसंद ना हो, मगर आपको उनको उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। नेवर से यू आर रॉन्ग। ओके, वाई? बिकॉज एवरी पर्सन इज राइट इन टर्म्स ऑफ हिज ओन क्राइटेरिया। हर इंसान अपनी जगह पर सही होता है। ओके, तो उसको रॉन्ग मत बताओ, उसको जो है तो भले ही आप उससे मतलब आप उसको सही नहीं मानते हो, मगर आपको उसके ओपिनियन से तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। देन इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैथिकली। नाउ व्हाट इज दिस, कि अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करिए। देयर इज नथिंग, नो शेम इन एक्सेप्टिंग योर रॉन्ग डूइंग। ओके, चाहे आपकी गलती आप अल्लाह ताला के सामने कबूल करें या किसी इंसान के सामने कबूल करें, आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो लोग गलती कबूल करते हैं वो लोग एक्चुअली बहुत बड़े लोग होते हैं। ओके, तो अपनी गलती अगर हुई है तो उसको कबूल करें क्विकली, एंड एम्पैथिकली उसको जो है तो एडमिट करो कि लोगों को उससे मतलब चोट ना पहुंचे, इस तरह से उसको कबूल करना चाहिए। देन बिगिन इन अ फ्रेंडली वे, और आपकी जो बिगिनिंग हो वो बिल्कुल फ्रेंडली वे में लोगों से हो जाए।
ओके, देन लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। ये कम्युनिकेशन के सारे पार्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि ज्यादातर जो कम्युनिकेशन है ये लोगों को कर दे दो, तो उससे ये होगा कि लोग आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होंगे, कि उनको ये समझ में आएगा कि हाँ यार ये इंसान ऐसा है कि जो हमको सुनता है, जो हमको समझता है। लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज इन हिज और हर्स, मतलब कि जो आइडिया है वो आपका जो है तो लोगों को समझ में आए। एंड ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। जो लोगों का नजरिया है, जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे चीजों को समझने की कोशिश करना हमको बहुत जरूरी है। देन बी सिंपैथेटिक विद अदर पर्सन्स आइडियाज एंड डिजायर्स। जो दूसरे लोगों के आइडियाज हैं, उनके डिजायर्स हैं, उससे सिंपैथी रखनी चाहिए हमको, उनसे जो है तो हमको सिंपैथाइज करना चाहिए। Then get the other person saying yes, yes immediately. Appeal to the nobler motives. और नोबलर मोटिव्स होता है कि जो मतलब एक नोबल कॉज होता है, जो नोबल मोटिव्स होते हैं उसके लिए हमको अपील करनी चाहिए। देन ड्रामेटाइज योर आइडियाज। ओके, अपने जो आइडियाज हैं उसको ड्रामेटाइज करके बताना, ये आपकी पर्सनैलिटी को उभारता है। देन थ्रो डाउन अ चैलेंज। ओके, देन थ्रो डाउन अ चैलेंज ऑन योर सेल्फ, कि आपको ये चीज सीखनी है और ये चीज बनना है। इसके लिए अगर अपने आप में आप एक चैलेंज रखते हो और उसको एक्सेप्ट करते हो, देन यू कैन बिकम अ गुड पर्सन। ओके, बेनिफिट्स ऑफ ग्रूमिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज पर्सनैलिटी में मैंने जैसे आपको बताया, आई गेस मेरी आवाज आ रही है बराबर? आयशा जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, माशाल्लाह। ओके, थैंक यू। नाउ पर्सनैलिटी में जैसे मैंने बताया आपको बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें कम्युनिकेशन भी है, उसके बारे में हमने बात की। उसमें जो है तो एक और एक चीज आती है, ग्रूमिंग। ओके, कि आप अट्रैक्टिव किस तरह से दिख सकते हो, बिकॉज दिस इज समथिंग कि अगर आप एक इंसान खड़ा है ना, तो आप उसको देखकर, जो इंसान जिस तरह से रहता है, जिस तरह से दिखता है, हम सबसे पहले तो पर्सनैलिटी उसके ऊपर देखते हैं, क्योंकि जो लोग सही दिखते नहीं है, हम उनसे ज्यादातर बात नहीं करते हैं, या हम उनको उतना प्रभावशाली नहीं समझते हैं। तो ये जो सबसे पहली चीज होती है, ये लुक्स की होती है। लुक्स मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जो है तो बहुत कोई टॉल आदमी या फेयर आदमी या हैंडसम आदमी, स्मार्ट आदमी की हम बात करें। आप जैसे भी हो, अपने आप को समाज में अच्छा दर्शा सकते हो, अच्छा दिखा सकते हो, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, कोई we are not going to talk about the color of the person, the body shape of the person, which is very wrong. We are not going to talk about other parts of the things. हम लोग ये बात करेंगे कि इंसान जो भी हो, जैसा भी हो, वो किस तरह से सही रह सकता है। ओके, सो इन चीजों की वजह से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। ओके, जितने आप अच्छे दिखोगे, आपको सोसाइटी में उतना बिल्टअप मिलेगा, उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा, विच हेल्प्स इन बेटर अपीयरेंस। ओके, और आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही सामने आएगी। हम कॉर्पोरेट ड्रेस कोड की बात इसलिए कर रहे हैं, बिकॉज यू नो ये जो बात होती है कॉर्पोरेट्स की, हम वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमको कहीं ना कहीं जाकर समाज में उसी तरह से रहना है। क्योंकि बाकी टाइप की ड्रेसिंग तो सभी लोग करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है शोरूम ड्रेस कोड, जो आप देख रहे हैं नीचे में, कि लेडीज जो है तो ज्वेलरी साड़ी वगैरह में दिख रही है, जेंट्स जो है तो भड़कीली टाई में दिख रहा है। ठीक है, ऊपर में कॉर्पोरेट ड्रेस कोड आप देख सकते हैं, जिसमें फॉर्मल कपड़े लोगों ने पहने हैं। तो हम इसी टाइप की पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। Now we are going to talk about the power dressing. Remember, you never get a second chance to make the first impression. Okay, that's why we say that the first impression is the last impression. Okay, so if you really want to become like that, you have to follow certain grooming tips. सबसे पहली चीज होती है हेयर। आपके जो बाल होते हैं, ये हेयर अबाउ ईयर एंड अराउंड द नेक शुड बी टैपर्ड। ओके, जो आपके बाल होते हैं, जैसे कि ये अभी मेरे कान दिख रहे हैं, ओके, बाल इस तरह से छोटे हैं, तो इस तरह से होना चाहिए, ना कि आपके जो है तो कानों पे बाल आए और वो अजीब दिखे। तो ये जो कुछ टिप है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि शेविंग डेली इज अ मस्ट। अगर आप शेव करते हो, जिस तरह के मैं रहता हूँ कि क्लीन शेव रहता हूँ, तो आप शेव करें। अगर आप दाढ़ी रखते हो तो उसको ट्रिम करें। जरूरी नहीं है कि दाढ़ी रखना कोई मतलब आप नहीं रख सकते हो, दाढ़ी रखते हैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में भी लोग दाढ़ी रखते हैं, दूसरी जगहों पे भी दाढ़ी रखते हैं। अगर आप दाढ़ी रख रहे हैं तो उसको ट्रिम कर लें, अच्छे से शेप दे दें। ओके, देन मुस्टैच अगर है तो उसको ट्रिम करें। साइड बर्न्स है, लाइक द पिक्चर विच आई कैन शो यू ओवर हियर। और आजकल मैंने देखा है बहुत सारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, सॉरी बट बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ भी दूसरी जगहों पर भी मैं काफ़ी जगह जाता हूँ, आजकल वो दाढ़ी अजीब सी रखना, बड़ी हुई, और साथ में बाल बड़े बड़े रखना, ये एक तरह का फैशन है। ओके, हम उसको हिप स्टाइल कहते थे, बट ये चीज़ से क्या होता है कि लोग आपसे इम्प्रेस नहीं हो पाते हैं।
ओके हो सकता है आपके ग्रुप में जो 5-10 लोग हैं, 15 लोग हैं, जो आपके सर्कल में हैं, वो आपको देखकर इम्प्रेस शायद हो जाए, मगर जो ज़्यादातर जो क्राउड है, ओके, वो इस टाइप की पर्सनैलिटी से खुश नहीं होता है। तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट हेयर कट और बहुत ही बेहतरीन हेयर कट यहाँ पे दिखाया गया है। उसके अलावा बेल्ट्स होते हैं, शूज़ होते हैं, फॉर्मल शूज़ और फॉर्मल बेल्ट्स आप अगर पहनते हो, तो वो उसमें आदमी की पर्सनैलिटी अच्छी खुल के सामने आती है। टाई होती है, सॉक्स होते हैं, ये भी सही तरह से पहनो। आजकल हमने देखा है बहुत सारे लोग जो है तो वो लोफर शूज़ पहनते हैं, उसमें सॉक्स नहीं पहनते हैं, व्हिच लुक्स वेरी वो एक फैशन के हिसाब से तो आपको ठीक लगता होगा, मगर जो कॉर्पोरेट ड्रेसिंग है या जो पर्सनैलिटी ट्राइट्स पे हम जो बात करते हैं, उसमें वो उभर के नहीं आता है। ओके? मतलब कि वो एंकलेट पैंट्स पहनते हैं लोग और लोफर्स पहनते हैं, उसमें सॉक्स नहीं पहनते हैं, और वो सॉक्स नहीं पहनना, इट इज़ अ वेरी बैड इंप्रेशन। सो यू शुड हैव सॉक्स एंड यू शुड हैव टाई अगर आप कहीं जा रहे हो वहाँ पे उसके लिए। यू शुड हैव अ हैंकरचीफ, गुड हैंकरचीफ इन योर पॉकेट, ओके, एंड वॉलेट एज वेल। एक्सेसरीज होती है, मेंस के लिए ज़्यादातर एक्सेसरीज नहीं होती है, उसमें मेनली वॉच होती है एक, बाकी जो एक्सेसरीज होती है वो ज़्यादातर फीमेल्स के लिए होती है। और कुछ डूज हैं मेंस के लिए, ऑलवेज लुक प्रोफेशनल, आपको हमेशा प्रोफेशनल लगना चाहिए। ड्रेस फॉर द ऑडियंस, ड्रेस फॉर द ऑडियंस का मतलब ये होता है कि आप जिस जगह जा रहे हो, ओके, ये पॉइंट्स इसीलिए लिखे मैंने क्योंकि हर इंसान की जो शख्सियत होती है, अलग अलग जगह पर हम जाते हैं, अलग अलग जगह के हिसाब से हमारा अपीयरेंस, हमारी ग्रूमिंग होनी चाहिए। जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ, आई कैन वेयर काइंड ऑफ जैकेट, सर्दी है तो पहना है, वाइट शर्ट है, ठीक है। अगर मैं, हो सकता है आपके अगर कॉलेज में कभी आऊँ तो मैं टाई लगा के ब्लेजर पहन के भी आ जाऊँगा, मैटर करता है। अगर मैं कहीं वीकेंड पर जा रहे हैं हम लोग कहीं पर, तो हम टी शर्ट्स और जीन्स पहन सकते हैं। तो ये मैटर करता है ऑडियंस कौन सी है, ओकेजन कौन सा है। देन वेयर क्लोथ्स दैट फिट यू, ओके, बहुत ज़्यादा लूज क्लोथ्स नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फिट क्लोथ नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर योर क्लोथ्स आर प्रेस्ड, आपका जो क्लोथ्स हो वो आयरन हो, अच्छे दिख रहे हो। शर्ट्स विद अ सिंपल कॉलर एंड कफ हो, ओके, अ फॉर्मल बट सिंपल वॉच हो। और कीप योर हेयर नीट एंड ट्रिम्ड, आपके जो बाल हैं वो बराबर हो, थोड़ा उसमें तेल लगा हो या जो भी आप यूज़ करते हो सीरम वगैरह, और ट्रिम हो, बराबर जमे हुए हो। यूज़ माइल्ड फ्रेग्रेंसेस, बहुत सारे लोग बहुत गहरा परफ्यूम लगाते हैं, अतर लगाते हैं, ऐसा नहीं लगाना चाहिए। बिकॉज ये बात मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि आप जब जाते हो आपकी पर्सनैलिटी आपकी स्मेल से उभर के आती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्रेग्रेंस लगाते हैं, तो वो लोग उनसे दूर भी भागते हैं। और शूज़ जो है तो हमेशा लेस अप होना चाहिए अगर आपने लेस वाले शूज़ पहने हैं, और बाकी पार्टेड होने चाहिए हेयर, ये सारी चीज़ है। डोंट्स फॉर मैन है, अवॉइड मल्टीपल बटन ऑन योर शर्ट, बहुत सारे होते हैं ना एक साथ में 4-5 बटन होती है शर्ट पे लगी हुई, अजीब अजीब टाइप की बटन होती है डिज़ाइनिंग की, वो अवॉइड करना चाहिए। रिंकल नहीं होने चाहिए क्लोथ पे, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ टिप्स फीमेल के लिए हैं ग्रूमिंग के लिए। Clean, neat, shaped and arranged in an attractive feminine and professional style. Conspicuous rubber bands, combs and pins are not advisable. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो वुमन दिख रही है आपको पोस्ट में, उसके बाल बराबर जमे हुए हैं, ग्रूमिंग है एक तरह से। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स फॉर वुमन, ज़्यादा मेकअप नहीं लगाना चाहिए, ओके, क्योंकि मेकअप्स आर ओनली फॉर द ओकेजन ऑफ मैरिजेस एंड फंक्शंस, और उसके अलावा जो है तो ज़्यादा मेकअप्स नहीं होने चाहिए। लॉन्ग फॉल्स आईलैशेस नहीं होने चाहिए, ये सब एक पर्सनैलिटी को जो है तो बहुत ही गलत साबित करते हैं। ज्वेलरी, ज्वेलरी मैंने अगेन बताया आपको, वेडिंग वगैरह में ठीक है अगर आप ज्वेलरी पहन रहे हो तो, लेडीज़ को ज्वेलरी का बहुत शौक होता है, बट लेडीज़ अपनी पर्सनैलिटी को अगर अच्छा उभारना चाहती है, अच्छा दिखाना चाहती है, तो वो सिंप्लिसिटी से बता सकती है। ज़्यादा ज्वेलरी जो है तो मतलब बहुत ही एक तड़क भड़क फैशन को बताता है, और उनकी पर्सनैलिटी कुछ और ही उभर के सामने आती है। इसलिए जो है तो बहुत ही सिंपल ज्वेलरी आप पहनोगे तो उतना बेटर है। दैन वुमेंस के लिए भी सेम चीज़ें हैं कि वेयर हील्स, ज़्यादा हील नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी वुमेंस जो है तो बहुत ज़्यादा हील पहनती हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं होना चाहिए, और ड्रेसिंग जो है तो बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाली नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर शादी ब्याह में आप लोग पहनते हो। बाकी जगहों पे अगर आप जाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी उस तरह से नज़र आती है। दैन अगेन वही है, वुमेंस के लिए भी सेम चीज़ें कि रिंकल नहीं दिखने चाहिए और बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर दी थिंग्स फॉर ग्रूमिंग. Now I'm going to share another thing with you in terms of body language. अब तक हमने जो देखा, हमने पहले ये बात को समझने की कोशिश की कि पर्सनैलिटी होती क्या है,
किस तरह से पर्सनैलिटी को उभारा जा सकता है। उसमें हमने ग्रूमिंग टिप्स कुछ ली, क्योंकि हमारा जो अपीयरेंस होता है वही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोगों में किस तरह से दिखाई देंगे। नाउ कम्स द बॉडी लैंग्वेज विच इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। ओके, इसमें सबसे पहले होती है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स को हम कहते हैं मूवमेंट, आप किस तरह से मूव करते हो। ओके, देन कम्स हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मींस टच। ओके, आप लोगों से बात कर रहे हो तो किस तरह से आपका मूवमेंट है और आपका टच किस तरह से है लोगों में। ओके, देन कम्स वोकलिक्स। ओके, वोकलिक्स मींस आपकी जो वॉइस है, आपकी वॉइस कैसी है। नाउ पीपल कैन हैव वेरियस काइंड ऑफ वॉइसेस। ओके, लोग जो है तो बहुत चिल्ला कर भी बात करते हैं और बहुत नरमी से भी बात करते हैं। ओके, तो आपकी वॉइस का जो टोन होगा, आपकी वॉइस किस तरह से है, ये जो है तो आपके पर्सनैलिटी को उभार कर लाती है। देन कम्स प्रॉक्सिमेरिक्स। स्पेस मीन्स स्पेस, आप लोगों को कितना स्पेस देते हो। ओके, आप जब लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, ये बॉडी लैंग्वेज के पार्ट्स है। ओके, नंबर 1 इज मूवमेंट, नंबर 2 इज टच, नंबर 3 इज वोकलिक्स, नंबर 3 इज स्पेस, नंबर 5 इज टेरिटोरियली, मतलब कि आप कितना ओनरशिप ले रहे हो जब आप बात कर रहे हो किसी से, आपका बॉडी लैंग्वेज में ओनरशिप कितनी है। देन कम्स क्रोनोमिक्स, दैट इज टाइम। ओके, आप टाइम किस तरह से टाइम फ्रेम में बैठ रहे हो। देन कम्स आर्टिफैक्ट्स, दैट इज ग्रूमिंग एंड एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही ग्रूमिंग के बारे में बता दिया कि आप एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर आपकी ग्रूमिंग सही है, अगर मैं यहाँ पर कोई भड़कीला शर्ट पहनकर आ जाता, ओके, मेरे बाल अगर बिखरे बिखरे हुए होते या मैं राउंड नेक का टी शर्ट पहन लेता, ओके, that could have looked very, you know, drastic in terms of my appearance, और उस अपीयरेंस को सुनने के लिए ऐसे व्यक्ति को कोई कभी नहीं आएगा। फाइन, सो ये चीज़ हमको एक समझ में आनी चाहिए। काइनेसिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, जो बॉडी लैंग्वेज होती है ये आपके जेस्चर, पोस्चर, इन सारी चीज़ों के ऊपर में मैटर करती है। पोस्चर इज लाइक जो आपका बॉडी पोस्चर होता है, आप किस तरह से खड़े हो। ओके, मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा जो लोग झुक के खड़े रहते हैं उनकी पर्सनैलिटी को लोग देख के ही बोल देते हैं कि यार इसके अंदर में दम नहीं है। ओके, ये बंदा जो है इसकी पर्सनैलिटी में एक बात नहीं है, दैट इज कॉल्ड पोस्चर, आप किस तरह से खड़े हो। ओके, देन कम्स जेस्चर। जेस्चर मीन्स कि आपके जो फेशियल ग्रीमेसेस होते हैं आप वो किस तरह से निकालते हो। ओके, आपका आई कांटेक्ट कितना अच्छा है, आपका स्माइलिंग फेस है या नहीं है। ओके, आप के जो फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं वो बराबर आते हैं या नहीं आते। सो दीज आर कॉल्ड एज जेस्चर्स। ओके, नेक्स्ट कम्स, उसमें बहुत सारी मूवमेंट्स होती है, हेड मूवमेंट आपकी कैसी है, आई मूवमेंट कैसा है, ये सब काइनेसिक्स में आते हैं। देन एज आई मेड यू, पोस्चर्स की बात होती है, आप किस तरह से बैठे हो, सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं। ओके, आप जिस तरह से बैठते हो वो पोजेस जो है तो दर्शाते हैं कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो किस टाइप का है। बहुत सारे लोग जाते हैं कहीं पर और वो मतलब पैर पे पैर एकदम उल्टा रख के बैठ जाते हैं। ओके, वो एक गलत एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ लोग जो है तो बड़ा झुक कर बैठते हैं इस तरह से, वो भी आपके लो कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। ओके, सो डू नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। उसके अलावा कई लोग टेबलों पे पैर रख देते हैं बैठते वक्त, दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। देन कम्स वोकलिस। वोकलिक्स मीन्स कि आपका वॉइस कैसा है, उसमें बहुत सारी चीज़ आती है वॉइस में। वॉल्यूम आता है आपका, कि आपकी जो वॉल्यूम है वो कितना है। सपोज आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन हु सिटिंग नेक्स्ट बिहाइंड टू मी, मेरे बाजू में जिस बैठा है, तो मेरी आवाज़ जो है उतनी ही हिसाब से होनी चाहिए। ओके, एंड सपोज इफ आई एम एड्रेसिंग टू पीपल हु आर इन अ गैदरिंग ऑफ सम 10 12 30 पीपल, या आपके क्लास में अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो वॉल्यूम है वो किस तरह से हो। ओके, so these things comes into this. Then comes pitch. Pitch means कि आपका जो वॉल्यूम का, जिसको हम कहते हैं कि राइज एंड फॉल किस तरह से हो रहा है। ओके, कि मैं कहीं पर अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, कहीं पर अपना जो उसका जो वॉल्यूम है वो कम कर रहा हूँ। दैट एक्चुअली गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ द मैसेज, कि मैं मैसेज अपना कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। देन कम्स पेस, के जो रेट होता है ना, मैं कितने जल्दी बोल रहा हूँ या कितना रुक रुक के बोल रहा हूँ। अभी कई लोग होते हैं कि वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, जैसे कि हाँ, अच्छा, हाँ, मतलब ये एक अलग तरीका है बात करने का। अब यहाँ पर दिस इज गोइंग ऑन, वी आर इन अ वेबिनार। अब यहाँ पे हमारे पास जितना टाइम है हम उसको देख कर जो है तो उस स्पेस में बात कर रहे हैं। देन कम्स पॉजेज। पॉजेज आर वेरी एसेंशियल व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन। ओके, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सब्र करिए। ओके,
उसके बाद में अपनी बात बोलिए, लेकिन पॉजेज आप कहाँ पर ले रहे हो, ओके, दैट डज मैटर। आपने कहाँ पर कितना पॉज लिया है, कहाँ पे कितना पॉज लिया है, ये सब कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेजेस में पार्ट आती है। देन कम्स रेजोनेंस, आपका जो डेप्थ है वॉइस का वो कितना है। देन इंटोनेशन और मॉड्यूलेशन, ये एक्चुअली मॉड्यूलेशन और ये सब जो होती है ये काफ़ी डीप वाली कम्युनिकेशन स्किल्स है जो VNA में भी सिखाई जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग। कि आपका एक्सेंट किस तरह से है, उसमें मॉड्यूलेशंस होते हैं, जैसे कि आप कोई एक वर्ड बोल रहे हो, उसी वर्ड को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स। देन देन एज आई हैव टोल्ड यू, हैप्टिक्स मीन्स टच। आप किसी से जब हैंडशेक करते हो, ओके, सो ये हैंडशेक शुड बी फर्म, ओके। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ये आपने बहुत बार सुना होगा, मैन्स हैंडशेक, ओके। मैन्स हैंडशेक मतलब कि फर्म हैंडशेक हो, लोगों से अच्छे से हाथ मिलाना। अब कई बार ये होता है कि कोई अगर फीमेल को आप अगर हैंडशेक करने जाओ, हो सकता है आपसे हाथ ना मिलाए, तो आप उसको, लोग समझते हैं कि बहुत ही वो लो कॉन्फिडेंस वाली वुमन है, बट ये ऐसा नहीं है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट, ओके। सो बट उसके बाद में इनअप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट ये होता है, जैसे कि टचेस होते हैं लोगों से, आप ज़्यादा, अगर चाहे वो जेंट्स हो, लेकिन आप उनको ज़्यादा टच करके बात नहीं कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को टचिंग अच्छी नहीं लगती है। हाँ, आप लोगों को अगर ज़्यादा टच करोगे बार बार तो इट वोंट फील गुड। हग्स, अब ये जो हग्स होता है कि एक दूसरे से गले मिलना, ये हमारे इंडियन सभ्यता में मेल मेल में हम गले मिल लेते हैं बाहर में अगर मिलते हैं तो, बट कॉर्पोरेट वेज में ये नहीं चलता है। सो मगर फॉरेन में ये हग्स का एक सिस्टम होता है। देन पुश विथ बॉडी, किसी को ढकेलना। सो ये सारी बहुत सारी एक चीज़ें होती है, इसलिए जो टच होता है इंसान का वो बहुत देख कर होना चाहिए किसी और इंसान को। देन कम्स प्रॉक्सिमिक्स, जैसे मैंने कहा कि स्पेस की बात होती है, कि जैसे यहाँ पर आपको मैं ये जो फोटो बताई है इसमें से मैं आपको बता दूँ कि इंटीमेट स्पेसेस होते हैं जो हमारे 1 to 5 फीट के अंदर में होते हैं, 1 फीट 5 फीट के अंतराल में होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज इंटीमेट स्पेसेस। इंटीमेट स्पेसेस का मतलब ये होता है कि मैं उन्हीं लोगों के साथ 1 या 5 फीट के दायरे में हूँ जो लोग मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं, ओके, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे घर वाले हैं, उनसे हम इतनी दूरी में बात कर सकते हैं, 1 से 5 फुट। ऑलवेज अंडरस्टैंड, नेवर इंट्रूड इनटू पीपल्स पर्सनल स्पेसेस। और वो जो पर्सनल स्पेसेस है वो फिजिकली भी होते हैं और मेंटली भी होते हैं, फाइन। फिजिकली एक दूसरे से भी होते हैं और मेंटली भी होते हैं, तो कोई भी इंसान के हम बहुत ज़्यादा करीब नहीं जा सकते, इसीलिए हम कहते हैं इंटीमेट स्पेस, कि जिसमें हम अपने परिवार वाले, दोस्त लोग, उन लोगों के साथ हो सकते हैं। 1-1.5 फीट का जो हम दूरी होती है। 4 फीट में पर्सनल स्पेस आ जाता है, कि हमारे कुछ और जो लोग हैं उसमें हम 4 फीट तक जो है तो वो लोगों को ले सकते हैं, उसको हम पर्सनल स्पेस कहते हैं। देन कम्स सोशल स्पेस। सोशल स्पेस मतलब कि आपका कोई पड़ोसी है, आपका कोई दूर का जानने वाला है, आप उनसे जो है तो बात कर सकते हो। देन कम्स पब्लिक स्पेस, कि पब्लिक स्पेस में हम जो है तो काफ़ी दूरी बना रखते हैं, ओके। सो दीज आर दी काइंड ऑफ स्पेसेस प्रॉक्सिमिक्स, कि हमारा स्पेस लोगों के बीच में किस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट इज, इट्स अबाउट टेरिटोरियल। टेरिटोरियलिटी मीन्स ओनरशिप, कि हमारा जो सामान है, हमारा जो चीज़ें हैं बॉडी लैंग्वेज में, जैसे आप देख रहे हैं ये बच्ची है, ये बच्ची बैठी हुई है फोटो में आप देख रहे हैं, और इसने जो बाजू वाली चेयर है उसके ऊपर में हाथ रख दिया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, चाहे वो बस में हो या गार्डन में हो, उनको चाहिए होता है कि ये भी स्पेस मेरा है, ये भी स्पेस मेरा है, ये भी स्पेस मेरा है, बट इट डिपेंड्स कि आप घर में हो या फिर अपने पब्लिक प्लेस में हो, ओके। सो ये होता है ओनरशिप, कि हम हमारी बॉडी लैंग्वेज को उस हिसाब से रखें। मैं अपने घर में किसी और हिसाब से बैठूंगा, ओके, मेरा जो बैठने का तरीका है वो कुछ और होगा, और ऑफिस में बैठने का तरीका कुछ और होगा, कोई वेडिंग में या किसी पब्लिक स्पीकिंग में जैसे अभी मैं हूँ, यहाँ पर बैठने का तरीका कुछ और होगा। सो ये हमको बात समझना बहुत ज़रूरी है, हमको ओनरशिप लेनी चाहिए। देन कम्स क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स मीन्स क्रोनोलॉजी से बना है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स कम्स फ्रॉम क्रोनोलॉजी, एंड दिस क्रोनेमिक्स मीन्स टाइम, कि हमारा जो सिरकाडियन रिदम होता है देखिए बॉडी का, वो टाइम के हिसाब से होता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि वो दिन में भी लेजी या वो स्लीपी महसूस करते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी दिखती है, सो आई एम सॉरी, नोबडी इज गोइंग टू लाइक यू,
ओके, सो यू शुड बी, दिन का वक्त है, आप बहुत ही एंथुजियास्टिक लिखना चाहिए, आप बहुत ही जोश भरे दिखने चाहिए, आपके अंदर में जो है तो पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी, पूरी तवानाई रहनी चाहिए। और उसके बाद में जैसे जैसे दिन ढलता है, आपके पास में अपना पर्सनल स्पेस है, दैट इज़ योर होम। आपका जो 9 बजे के बाद रात में जो टाइम है, आप वहाँ पे जो है तो आराम कर सकते हो, बट इन द मॉर्निंग टाइम यू शुड बी फ्रेश, यू शुड लुक गुड। सो ये होता है क्रोनेमिक्स, ये भी बॉडी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिपिक्ट करता है। देन कम आर्टिफैक्ट्स, हाउ यू ड्रेस, जैसे मैं हम पहले ही बात कर चुके हैं ये चीज़ों की, कि आप ड्रेसिंग कैसे करते हो और उसके अलावा अपने जगह को कैसे रखते हो। ठीक है, आपकी जो ड्रेसिंग होती है, फाइन, इट डिपेंड्स, इट डिपेक्ट्स योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। ओके, जिसकी हम बात कर चुके हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बड़े बेहतरीन ड्रेसअप करते हैं, बहुत बेहतरीन दिखते हैं, बट उसका एक ओकेजन होता है। ओके, हर हर ड्रेसिंग का एक ओकेजन होता है। जैसे कि लोग बहुत ही ज़्यादा भड़कीले कपड़े पहन लेते हैं। ओके, अब उसका ओकेजन जो है तो वो शादियों के लिए है या कोई उस टाइप के फंक्शन के लिए है। फॉर्मल ओकेजन्स में या डेली डे टू डे लाइफ में उसका एक अलग ओकेजन होता है। तो हमारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं, हमारी जो ड्रेसिंग है, हमारी जो ये सब चीज़ें हैं, ये पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। देन दिस इज समथिंग here I would like to end my session, and I'm giving you the time for question and answer, because we are already running short of time. And as this was the first presentation with your college, uh, we have tried to give you, the students, the basics of personality development. Now, personality development कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन में इंसान या किसी की एक बात में जो है तो चेंज हो जाएगा। इसके लिए बड़ा टाइम लगता है। और मैंने जैसे सबसे पहले आपको वो टिप्स जो बताई है, जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन में मैंने टिप्स बताई थी आपको, कि सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट यू शुड रिस्पॉन्सिबली टेक एक्सेप्टेंस, कि हाँ भाई मेरे अंदर में कुछ चीज है, कमी की बात नहीं है, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच हैज टू बी चेंज्ड। ओके, और देयर आर समथिंग विच आई हैव टू लर्न। देखिए, इंसान की जो शख्सियत बनती है वो 3 चीजों से बनती है, एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। और यही होती है आपकी पर्सनैलिटी। आपका एटीट्यूड जिस तरह का होगा, जिस तरह का आपका नॉलेज होगा, जिस तरह की स्किल्स आपके पास होगी, वो सारी चीजें जो है तो आपकी पर्सनैलिटी को बनाने वाली है। तो आप अपने, जो अभी आपका टाइम है वो है नॉलेज लेने का, उसके साथ में कुछ स्किल्स एक्वायर करने का। जैसे स्किल्स होती है, लैंग्वेज आप सीखिए। अभी इंग्लिश लैंग्वेज चूंकि ज़माने में बहुत ज़रूरी है, और वो सीखिए। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल सीखिए। जैसे मैंने बताई कि कम्युनिकेशन स्किल ये नहीं है कि आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लें। कम्युनिकेशन स्किल ये है कि आप कितने अच्छी तरह से अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सके, और लोगों की बात को कितनी अच्छी तरह से आप समझ सके। ये होता है कम्युनिकेशन स्किल। देन अपने एटीट्यूड को उभारें। ओके, और यही सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को उभारेगी। तो हमने वी ट्राई टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया रिगार्डिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इंशाल्लाह, इफ द अपॉर्चुनिटी वुड बी प्रोवाइडेड, आई विल गिव यू एन ओवरऑल थिंग रिगार्डिंग इंटरव्यू टेक्निक्स, रेज्यूम राइटिंग, कि आप किस तरह से अपना रेज्यूम बनाएं। रेज्यूमे होता है आपका एक डॉक्यूमेंट होता है, जो आप, जिसमें आपकी सारी स्किल्स वगैरह आप लिखते हो, क्वालिफिकेशन लिखते हो। एंड द रेज्यूमे इज द वेरी एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू गेट यू टू द इंटरव्यू। एंड देन इफ यू आर गोइंग टू द इंटरव्यू, how to do the rest of the things. So inshallah we will try to do it. Now the question answer session can start now. Miss Aisha. Yes, sir. The first question is anonymous attendee has asked it. सर, इस्लाम में बियर्ड रखना तो सुन्नत है, और आप बोल रहे हैं कि ना रखो तो कोई बात नहीं, उसे ट्रिम करना चाहिए। एक्चुअली इसने आपने यहाँ पे क्लियर किया था, आप दोबारा से इसको बता दें उनको कि आपने मना नहीं किया है। मैंने नहीं की बात नहीं की और मना भी नहीं किया। देखिए, दाढ़ी रखना चाहिए, दाढ़ी रखना सुन्नत है, और मुसलमानों को जो भी जब भी जैसे चाहे वो दाढ़ी रख सकते हैं, चेहरा रख सकते हैं। मेरी दाढ़ी नहीं है इसलिए मैं शेव करता हूँ, एंड आई हैव सम अदर इश्यूज एज वेल। उस वजह से मेरी दाढ़ी मैंने नहीं रखी है। बट जो लोग दाढ़ी रखते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको वो एक बराबर रखे, एक हिसाब से ट्रिम करके रखे। ओके, क्योंकि आजकल हमने देखा है, आपने मेरी बात को एक्चुअली अलग वे में ले लिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि आजकल बहुत सारे लोग दाढ़ी रख रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली मुस्लिम्स, इट्स अबाउट एवरीवन, दे आर कीपिंग बियर्ड। लेकिन वो बियर्ड जो रख रहे हैं ना, वो बड़ी ही अजीब तरह से रख रहे हैं। उनके बाल भी बड़े होते हैं, दाढ़ी भी उनकी बड़ी होती है, साइड लॉक्स और बाल जो है तो दाढ़ी एक साथ जो है तो जम जाती है। तो ये बताया जा रहा है कि दाढ़ी अगर रख रहे हैं तो उसको एक हिसाब से ट्रिम करिए, बाल बराबर उसको ट्रिम करके रखिए। दिस इज द थैंक यू सो मच, सर।
M. Shakil Patel has asked, sir, how to develop communication skills in English language? Now, first and foremost thing is if you really want to develop the communication skills, and if you really want to learn the language English is something you are learning it since your childhood. Let me tell you, आप लोगों ने ए फॉर एप्पल पहले सीखा है, ठीक है, आप लोगों को पता है, आपने ग्रामर्स भी पढ़े हैं, बट आपने उसको उस तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। जो हमारा आपका जो एजुकेशन हुआ है, आपको आपने उसको सिर्फ पास होने की हद तक देखा है कि आपको ऐसे लिखना है, ग्रामर लिखना है, और हमने पास होने की हद तक लिखा है। आजकल बहुत ईजी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर अवेलेबल ऑनलाइन। आप बहुत सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर आप एक कोई लगा लें, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, वो हो, आप उसको पढ़ें और इतनी ज़ोर से पढ़ें कि आपकी आवाज़ आपके कानों तक जाए, ठीक है? सबसे पहला स्टेप ये लीजिए आप, क्योंकि पढ़ना सबको आता है, आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना आता है। आप उसको पढ़ना शुरू करें और फ्लुएंटली पढ़ना शुरू करें। उसके बाद में सेकंड स्टेप, अपने साथ में एक डिक्शनरी रखो। अब तो ऑनलाइन आपके पास में गूगल है, मोबाइल है, जो वर्ड नहीं समझ में आता है उसका डिक्शनरी में मीनिंग देखें और उसको समझें। बहुत धीरे-धीरे आप अगर ये काम करते रहोगे और अपना हेडफ़ोन वगैरह लगा के कुछ चीज़ें इंग्लिश में सुनते रहोगे, आपके कानों को आदत हो जाएगी सुनने की। एंड देन ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विथ योर कलीग्स। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके घर वाले, उनसे बात करना शुरू करो। पहले-पहले बड़ा मज़ाकिया लगेगा, बहुत अटपटा लगेगा लोगों को, लेकिन आप वो करते रहोगे धीरे-धीरे, 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 यू विल अंडरस्टैंड कि वो धीरे-धीरे आप खुद ही जो है तो मास्टर होते जा रहे हो। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। स्किल्स कम्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग, ओके? जो भी स्किल्स होती है इंसान के अंदर में, वो प्रैक्टिस से आती है। तो ट्राई टू डेवलप दी स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग देम। होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। Yes, sir. Thank you so much. और बाद में आप And चाहो तो कोचिंग क्लासेस वगैरह होती है बहुत सारी, अगर आपको लगानी है तो आप उस तरह से भी सीख सकते हैं। बट यस, uh, and also one more question was same asked, that how to develop communication skills in English again, because they are from Gujarat and they find it very difficult to speak in English language. So Alhamdulillah, sir has explained it very well. no, it's yeah, Aisha ji, one thing, it's not about Gujarat, because I have been into Gujarat. Currently I am residing on the, you know, बॉर्डर ऑफ गुजरात इटसेल्फ, जो नंदुरबार एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ। सो आई हैव वेरियस गुजराती स्टूडेंट्स। आई हैव बीन टू गुजरात, मैंने गुजरात के कॉलेजेस में भी पढ़ाया है। आई नो वहाँ पे है थोड़ा बहुत इशू, बट ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह पर ये इशू नहीं है। व्हाट हैपन कि हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है तो वर्नाकुलर मीडियम से, मतलब कि अदर देन इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमको इंग्लिश नहीं आती। आपको इंग्लिश आती है, लेकिन आप उसको खाली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप उसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में डाल दोगे, आप डे टू डे लाइफ में अगर डाल दोगे, आप डेली जो है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे, आप लोगों से इंग्लिश में बात करना शुरू कर दोगे, इट कम इनटू प्रैक्टिस। गुजराती कैसे आई आपको? आपके घर में गुजराती बोली जाती है, आस-पास में गुजराती बोली जाती है, तो आपको गुजराती आ गई। हिंदी आपको नहीं आती थी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है गुजराती में हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होता है, मगर वो थोड़ा गुजरात से बाहर निकलते हैं तो वो हिंदी सीख जाते हैं, क्योंकि उनको काम है। तो इसी तरह से हमको ये समझना चाहिए कि इंग्लिश का हमको काम है, ओके? मुझे इंग्लिश आएगी तो मेरा मतलब 4 काम बनेंगे, मेरा बिज़नेस में या मेरे जॉब में मुझे तरक्की मिलेगी। उसको एक्सेप्ट कर लो और सीखना शुरू कर दो, यू विल बी फार फ्रॉम एक्सेलेंस। एंड ट्राई टू न्यूट्रलाइज़ योर एक्सेंट, जो आपका टोन होता है, जो बात करने का तरीका होता है, उसको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करो। थोड़ा वॉल्यूम को कंट्रोल करना सीखिए आप, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ग्रूमिंग टेक्निक्स में, सॉरी, बॉडी लैंग्वेजेज़ में भी, कि किस तरह से वॉइस को ऊपर-नीचे करना चाहिए, लाइक दैट। यस, यस। Somebody has asked, sir, that is it mandatory to make eye contact and how to improve online communication? I think so. These two are two questions. Okay, So first, see, eye contact is something, eye contact comes from your level of confidence, okay? और जो level of confidence होता है, it depends entirely on these 3 aspects as I have mentioned to you. Number 1 is knowledge, number 2 is skill, number 3 is attitude, okay? Attitude, skill, knowledge, we call it ask in simple short word, ask। इंसान का और सबसे पहली चीज़ होती है कि अपने ऊपर में जो कॉन्फिडेंस आता है हमारा, ये हमारे यहाँ से आता है, ओके? हम ये सोचें कि भई हम किसी से कम नहीं हैं, ओके? और कोई भी हमसे कम नहीं है। आई एम ओके, यू आर ओके, ओके? ये एक बहुत बड़ा कांसेप्ट है, जिसका मेरा एक बिहेवियरल विंडो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल टेक द सेशन ऑफ इंटरव्यू टेक्निक एंड ऑल, आई विल शो इट टू यू।
ये कंसेप्ट जो है इसको अगर हम फॉलो करें कि आई एम ओके एंड यू आर ओके, लाइक अगर आप मुझसे बात कर रहे हो ओके और मुझे आपको लगता है कि यार ये बंदा इतनी सारी बातें बोल रहा है, ये आदमी इंग्लिश बोल रहा है, it's okay, this fellow is having, I am having means I am having nearly 15 years of experience, okay, and rest of my 5 to 7 years I have given into my studies, okay, post graduation and all, I am also pursuing my PhD. तो वो एक मेरे साथ में उतने सी चीजें जुड़ कर आई है, मैं अपनी जगह पर सही हूँ, आपको सीखनी है चीजें, आप अपनी जगह पे सही हो, तो यू कैन डू द आई कॉन्टैक्ट। हाँ, देयर आर सर्टन थिंग्स लाइक इश्यूज होती है लड़कियों के साथ कि लड़कियां आई कांटेक्ट नहीं कर पाती है, तो वहां पे थोड़ा सा मामला अलग है, उसको लोग समझ जाते हैं, बट व्हेन यू विल बिकम कॉन्फिडेंट, आपकी पर्सनैलिटी एक बार आपने डेवलप कर ली, आई हैव सीन वेरियस वुमेन्स इन हिजाब एज वेल, माय वाइफ शी इज अ हिजाबी, वो हिजाब पहनती है, ओके, उनका नोज पीस वगैरह सब लगा रहता है, बट शी स्पीक वेरी वेल, शी इज ऑल्सो अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर फॉर वुमेन्स, सिर्फ वुमेन्स के सेशन लेती है कभी कभी, तो करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक अलग सेशन है। सबसे पहले तो हमको ऑनलाइन कम्युनिकेशन किस हिसाब से चाहिए, अगर आप व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह वाली बात कर रहे हो तो मैं तो सबको यही कहूँगा कि कम से कम ऑनलाइन कम्युनिकेशन रखें तो बेटर है, ओके। अपनी लाइफ को ज़्यादा पब्लिक ना करें हम, ये बहुत बड़ी एक गलती है हम कि ऑनलाइन में हम बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे हम कम मतलब टाइम दें, हमारे रिश्तेदारों जान पहचान वालों से बात करें, उसके अलावा इंस्टाग्राम वगैरह इस पे हमारी पब्लिक लाइफ में हमको मतलब अपनी लाइफ को पर्सनल लाइफ को पब्लिक करना नॉट नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। यस, नेक्स्ट। How to speak clearly with the client? हाउ टू स्पीक क्लियरली विद द क्लाइंट, एज आई हैव मेंशन कि आपको सबसे पहले तो अपना जो टोन है उसको न्यूट्रलाइज करना होगा, आपको ये समझना होगा जब आप लोगों से बात कर रहे हो तो आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ओके। और जब आपको ये चीज़ समझ में आएगी तो जैसे आपको बताया गया है कि एक डायरी मेंटेन करिए, लॉग बुक या डायरी मेंटेन करिए कि यहाँ पे मेरा जो टोन है, कई कई लोग होते हैं वो बहुत ज़ोर से बोलते हैं, उनको ऊंचा बोलने की ही आदत होती है, ओके, तो दैट्स वाई दे आर अनेबल टू कंट्रोल देयर पिच। कई लोग होते हैं वो बहुत धीरे बोलते हैं, वो इतना धीरे बोलते हैं कि उनके बाजू में भी बैठो तो लोगों को सुनाई नहीं देगा। सो ट्राई टू कंट्रोल योर पिच, वॉल्यूम जो होती है उसको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं आप, ओके। देन आपके जो वर्ड है, जो अल्फाज है, वो कई लोग होते हैं उनका जो है तो टोन बराबर नहीं होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करिए। थैंक यू। Thank यस you मैम। so much, sir. One last question. I think it is related to the personality. Somebody has asked that it is related to anger management. Basically, they ask that we get angry on very small things, normal things, on which we later on we feel that we should not get That angry. we So are, we that is a okay. question related to the topic. So I would like to answer you, sir. या श्योर। देखिए, ये जो चीज़ है, ये जो इशू है एंगर मैनेजमेंट का, या जिसको हम कहते हैं कि यू नो लूजिंग द कंट्रोल, अब वो लूजिंग द कंट्रोल जो होता है ना, ये बहुत सारी चीज़ों में होता है। इंसान अपने बहुत इमोशंस हैं, देखिए दीज ऑल आर इमोशंस, एंगर इज अ इमोशन, हैप्पीनेस इज अ इमोशन, ओके, नर्वसनेस इज अ इमोशन, ये सब इमोशंस हैं, फाइन। अब हमको ये समझना है कि हमको सारे इमोशंस को कंट्रोल करना, और इसी को कहते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके। ये एक पूरा का पूरा एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो आई ऑलरेडी डिलीवर टॉपिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है तो पूरा एक टॉपिक है, मैं इवन आपके गुजरात में डिलीवर कर चुका हूँ, बड़ौदा के कॉलेज में, बावानी ग्रुप का कोई एक कॉलेज था, वहाँ पे मैं फिजिकल दे चुका हूँ ये, टू कंट्रोल दीज थिंग्स। ये होता है कि हमको जो इमोशंस जो होते हैं हमारे, उसको हम कहते हैं पहले तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हम पहले अपने आप को समझें, सेल्फ रियलाइजेशन हम उसको कहते हैं। उसके बाद में होता है सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ मैनेजमेंट, कि अपने आप को हम कंट्रोल करना सीखें। देखिए, आप कौन कौन सी बातों पे आपको गुस्सा आता है, आप नोट करिए। क्या आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कि लोग आपको कोई चीज़ चिढ़ाते हैं तब गुस्सा आता है, या आपको कोई ऐसा काम है जो लोग करते हैं तो उससे गुस्सा आता है, तो उस चीज़ को पहले आप ऑब्जर्व करिए, उसको लिख के रखिए, एंड देन ट्राई टू बिकम अ पर्सन कि यार मैं अपनी जगह सही हूँ और सामने वाला बंदा जो है तो वो अपनी जगह पर सही है, ओके। हम हमारे एटीट्यूड को सही करने की कोशिश करें, कि कई सारे लोग होते हैं कि वो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि माई एटीट्यूड इज़ माई एटीट्यूड, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा ज़िंदगी,
मुझे नहीं चाहिए। आपको पहले ये चीज़ समझनी होगी कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान जो है तो समाज में रहने वाला है, एक मतलब एक ऐसा व्यक्ति, हम सभी लोग एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में, एक माशरे में रहते हैं, और हमको एक दूसरे की ज़रूरत है। ओके, तो आपको अगर समाज में अच्छा बनना है तो आपको हर एक इंसान की बात को समझना भी पड़ेगा, अपने आप पे कंट्रोल रखना भी पड़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट, और इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह, श्योर सर। यस। अगर ऐसी कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक्स आप लोग चाहते हैं तो मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी अपनी कंसर्न टीचर हैं वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स उनसे जो है शेयर करें अपने टीचर्स से। इंशाल्लाह we have very good trainers and Rahil sir is mashallah very qualified and very much expert on these things, so वो हमें जो है दोबारा ज्वाइन करेंगे और इन चीज़ों पे मजीद जो है वो वजाहत पेश करेंगे। एंड आई विल नाउ टेक जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन सर, यस। और इसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज ऑलरेडी टू लेट। सो हाउ टू बी मोर इफेक्टिव इन टॉकिंग विद अदर्स। सो आई थिंक सो दिस क्वेश्चन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यस, इतनी देर वो से हम मैंने यही क्वेश्चन आप बात, जो है हाँ, हाँ, यही अपनी आप एक्सप्लेन पर्सनालिटी कर को रहे हम थे। जितना ग्रूम करेंगे, हम लोगों को जितनी अच्छी तरह से सुनेंगे, लोगों को हम जितनी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, अपने आप पे कंट्रोल रखना भी वही बात हुई एंगर मैनेजमेंट की भी, कि हम अपने ऊपर मतलब अपनी पर्सनालिटी को उभारने के लिए जब लोग हमसे बात कर रहे हैं ना, उस वक्त हम अपनी जो कंसेप्ट है, हमारे जो बातें हैं, उस पर हम कम तवज्जो दे, सामने वाले को पहले सुन ले। ओके, उनकी बातें सुन ले, उनकी बातें समझ ले, और उसके बाद में अपने जो ख्याल का इजहार करना है वो तब हम करें। ओके, देन वी शुड रिएक्ट, देन वी शुड टॉक। सो उस तरीके से हम बहुत अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ओके, होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से जो है आंसर किया है और मुझे लगता है कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया है। एंड लेटर ऑन मैं जो है फीडबैक का लिंक शेयर करूँगी आपकी मैडम से, अब वो आप लोगों को देंगे और वो आप लोग उस पर प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। और इसके साथ ही मैं जो है इस सेशन को वाइंड अप करना चाहूँगी। इट वाज़ अ वंडरफुल सेशन और मुझे बहुत खुशी हुई कि सारे बच्चों ने इतना जो है अटेंटिव होकर के सेशन को जॉइन किया और आखिर तक हमारे साथ में बने रहे। और मिस्टर राहील खान सर के भी बहुत-बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने बिज़ी शेड्यूल से जो है टाइम निकाला हम लोगों के लिए और हमें इतना कुछ इन्फॉर्मेटिव जो है शेयर किया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू सर। सेशन इज़ गेटिंग ओवर हियर। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।